Hello everyone, myself Sapna. Welcome to back my channel. Today we are going to talk about one of the most controversial and emotional cases from India's colonial history, the case of Rajanand Kumar 1775. He was a respected Indian noble, a powerful voice in Bengal, and someone who dared to speak against British injustice, but for standing up for the truth. He was trapped in a false case, and what followed was one of the earliest examples of how colonial power misused the law. This video will take you through the life, the trial, and the tragic end of Rajanand Kumar, a name that deserves to be remembered in the history of India's fight for the justice. Let's begin. Was Rajanand, बगल में जो आप फोटोज देख रहे होंगे ये महाराज नंद कुमार जी की ही फोटो है. Raja Nand Kumar, also known as Maharaj Nand Kumar, was Hindu Brahmin of the highest rank. He was given the title Maharaj by Shah Alam in the year 1764. राजा नंद कुमार को महाराज नंद कुमार के नाम से भी जाना जाता था. ये उच्च वर्ग के हिंदू ब्राह्मण थे. शाह आलम द्वारा 1764 में इन्हें महाराज की उपाधि भी दी गई थी. He was a big zamindar. He worked for the Nawab of Bengal in varieties of capacity, mostly as a revenue collector. ये एक बहुत ही बड़े जमींदार थे. इन्होंने बंगाल ऑफ नवाब के लिए उनके अधीन बहुत से कार्य किए, बहुत से पदों पे कार्य किए. मोस्टली जो कि किए वो एज ए रेवेन्यू कलेक्टर. He was made the governor of Hooghly under Nawab Siraj-ud-Dowlah once in 1756. उन्हें 1756 में नवाब सिराजुद्दौला द्वारा हुगली का गवर्नर नियुक्त किया गया था. He had earned the confidence of the मुर्शिदाबाद दरबार. उन्होंने मुर्शिदाबाद दरबार का विश्वास जीत लिया था. After holding a succession of the posts under native governments of company during 1757, he was awarded the name Black Colonel during uh, during Governor General Robert Clive periods. In 1758, he was even recommended to Lord Robert Clive for appointment as an agent to collect revenue for the district of Bardhaman, Hooghly, and Nadia. He was a very influential person in Bengal. बंगाल की देशी सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद 1757 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उन्हें गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के समय में ब्लैक कर्नल की उपाधि से नवाजा गया. 1758 में उन्हें रॉबर्ट क्लाइव के बर्दवान, हुगली और नदिया जिलों में रेवेन्यू कलेक्टर के एजेंट के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी. वे बंगाल के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे. ऑफ द केस राजानंद कुमार को एक छोटे केस में जालसाजी में कह सकते हैं फंसाया गया था. Soon after Nand Kumar along with Fockis and Radhacharan and arrested for conspiracy at the instant of Hastings. जल्द ही नंद कुमार फॉक्स और राधाचरण के साथ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए. यह कार्रवाई हेस्टिंग के चढ़ाने बढ़ाने पे की गई थी. हेस्टिंग उस टाइम इंडिया का गवर्नर था. हेस्टिंग wanted to take revenge from Raja Nand Kumar in furtherance of which he demanded Mohan Prasad to humiliate Nand Kumar by filing a case for forgery against him. The charges of forgery against him were in connection to a deed or bond which was executed by Rajanand Kumar 1765 and was claimed as an acclamation and ratification of a debt from a banker, Bulki Das. The judgment was reserved from Nand Kumar bears few case fine. हेस्टिंग राजानंद कुमार से बदला लेना चाहता था और इसी बदले की भावना से उसने मोहन प्रसाद को मतलब वो चढ़ाया बढ़ाया.
कि वह नंद कुमार को अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ जालसाजी फर्जीवाड़ा का मुकदमा दायर करे। यह जालसाजी का मामला उस दस्तावेज या बॉन्ड से जुड़ा था जिसे राजा नंद कुमार ने 1765 में निकाला था, खोज निकाला था, और जिसे एक बैंकर बुल्की दास से कर्ज की पुष्टि और अनुमोदन के रूप में पेश किया गया था। इस मामले में नंद कुमार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जबकि कुछ अन्य मामलों में जुर्माना लगाया गया था। The trial against Rajanand Kumar for forgery and conspiracy ran concurrently. Warren Hastings anticipated that involving Nand Kumar directly any way possible as far as charges for the conspiracy were concerned would be largely difficult. So he implicated and scapegoated Rajanand Kumar in another case of forgery. राजानंद कुमार के खिलाफ जालसाजी और षड्यंत्र का मुकदमा साथ साथ चला। वारेन हेस्टिंग को यह आभास हुआ, उसे ये लगा कि षड्यंत्र के आरोपों में आनंद कुमार को सीधे तौर पर शामिल करना या फंसाना उन्हें मुश्किल होगा। इसलिए उसने एक और जालसाजी में मामले में फंसाकर बलि का बकरा बना दिया उन्हें। जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। इसमें हम ये देख सकते हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं कॉलोनियल पावर का मिसयूज कैसे किया गया था लॉ में। The matter was summarized on the morning of 16th June 1775 by Chief Justice Simpe। 16th June 1775 में न्यायाधीश इम्पे द्वारा केस की समरी को रखा गया। Rajanand Kumar was held unanimously guilty by judges and the jury also gave the same verdict। Rajanand Kumar को जबरन दोषी ठहराया गया और उस साथ में जूरी ने भी हाँ में हाँ भर दी। He was incarcerated to death by the same Chief Justice under the English Act of 1729 of the British Parliament, and the then Honourable Supreme Court dismissed the conspiracy case as they did not have any evidence against Rajanand Kumar। जब 16 जून 1775 की सुबह इम्पे और पूरे अदालत में ये मामला रखा गया, तो वो यह पल था न्याय के नाम पे अन्याय की नींव रखी जा रही थी। राजानंद कुमार को न्यायाधीशों में जबरन दोषी ठहराया गया और जूरी ने भी वही निर्णय दोहरा दिया। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वे इंग्लिश एक्ट ऑफ 1729 में थे, एक ऐसा कानून जो भारत की धरती पर जबरन थोपा गया था। उसी कानून के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई। दूसरी ओर वह षड्यंत्र का मामला जिसमें राजानंद कुमार को फंसाया गया था, उसे अदालत ने मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके विरुद्ध कोई ठोस परिणाम नहीं है। सच तो यह था कि उन्हें एक साजिश के तहत बलि का बकरा बनाया गया। Therefore, he was hanged on August 5th, 1775 at 8 o'clock in the morning at the Coley Market near Fort William and close to the modern Hastings Bridge। आखिरकार 5 अगस्त 1775 की सुबह ठीक 8 बजे राजानंद कुमार को फोर्ट विलियम के पास स्थित कुली बाजार में फांसी पर लटका दिया गया। यह वही स्थान था जो आज के हेस्टिंग ब्रिज के निकट स्थित है। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि भारतीय न्याय, अस्मिता और आत्मसम्मान की भी एक बहुत ही बुरी हार थी। थैंक यू एवरीवन, बने रहिए।